Classic was not that famous as well. Chris Bumstead made the classic physique, right? He Yep. made it famous. Maybe it can be me, it can be Banks, it can be anyone that's also going to make the men's physique as big as classic. You never know. It Exactly. is already huge. Um, I got, by the way, just to make something clear, I got 14,700 from the Arnold. They took 14. tax off. Yeah, they took tax off, conversion rate, all these things. So I'm left with 14,700 something, okay? Just want to make that clear from the 25,000. Now let me just tell you something. Wait. Yeah, it's crazy, right? Oh, So we are talking here about I did other shows in Europe here where I got $2,000 for a first prize. We are living in Europe. Why do we have dollars? Why do you yeah. pay dollars? Okay, from $2,000, they took 400 euros to convert the money to euros. I'm left with 1,600, right? From 1,600, they took 300 tax. I'm left with like, how much is that? 1,300, right? From 1,300, they took 200 to send it through PayPal. I'm left with 1,100. Is that correct to you? No. Oh, Is that's is a 16 crazy. is a 16-week prep worth $1,100? Absolutely not. You can argue with that. Worth $2,000. Not. No. Absolutely not. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे अली बिलाल की। देखो, अली बिलाल ने जो आर्नोल्ड के लिए बोला था और साथ में जो चीज़ें निकल के आई थी कि कैसे उनको ट्रीट करा गया, कैसे मेंस फिजिक डिवीजन को डिसरेस्पेक्ट करी गई, उस बारे में काफ़ी बड़े रेवलेशंस करे गए हैं अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट में, जो कि मेंस फिजिक रेडियो चैनल पर चलता है, जहाँ पे एलेक्स टॉपलिन इज़ द होस्ट। और वहाँ पे उनके साथ में मिलके एरिन बैंक्स भी ये पॉडकास्ट होस्ट करते हैं। तो एनीवेज यहाँ पर उन्होंने इस बार अली बिलाल को बुलाया और काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ें निकल कर आई गाइस। No, I didn't really enjoy the win. Yeah. And I sat in the car and I made the video and I thought about it. I saved it and I was like, it can go really wrong because Arnold is like huge in the industry. I love him, like he was a role model. I watch all his videos, I watch all his movies, and he inspired us, like all of us, to get into. He made the bodybuilding huge, but bodybuilding made him huge. You forget that, right? Yep. What came first, IFBB or Arnold? IFBB, right? 100%. IFBB made the Arnold, and now Arnold is saying he's better than the Olympia and better than the IFBB, but that's their problem. So that's right, right? You're not wrong. You're not You wrong. know, I'm going to see if I get the support. Okay, if I don't, I'm going to say my opinion because it's really tough to be like the first person say that thing. And when I said it, there was like two of my friends that sent me right away, delete the video, it's not good. I'm like, give me 5 minutes. And then once I saw the reach and people saying positive things, I was like, okay, thank God, you know. And I talked to the people in the industry, like I got literally message from every, you know, big bodybuilder, classic physique guys, all the champions, 212 guys. There's a lot of bikini girls who text me, a lot of like figure girls, who don't get. It's not only us. We have the problem. There's a lot of figure fitness. There's so many divisions. They like to have it, but they don't. There's so many Appreciate divisions. They it. don't get respect, right? That's what it is. They don't. You know, मतलब फर्स्ट तो आप यही देख लो, सबसे बड़ी चीज़ कि कैसे अली बिलाल ने पहले तो ये बताया कि मैंने वीडियो शॉट करा बिकॉज मुझे कई सारी चीज़ें पता लगी, सुनने को मिली, और मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी निकल के आ रही थी मीडिया पे, हर जगह यही चीज़ें चल रही थी मेंस फिजिक डिवीजन के बारे में। तो मेरी जीत जो थी ना, वो थोड़ी सी खट्टी हो गई थी। तो उसके बाद अली बिलाल ने ये बोला कि मैंने वीडियो कार में बैठ के रिकॉर्ड करा, लेकिन उसके बाद भी मैं बैठ गया और बैठ के मैं सोचने लगा। अब मैं सोचने क्यों लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। मैं आर्नोल्ड से एक तरह से भिड़ रहा था, और आर्नोल्ड एक बहुत बड़े नेम है इंडस्ट्री के, और सबसे बड़ी बात, उनको हम सब पसंद करते हैं। वी आर ऑल अ फैन ऑफ आर्नोल्ड। हमने उनकी मूवीज़ देखते हुए बड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। इसलिए मैं थोड़ा सा बैठा और इस बारे में सोचा, और उसके बाद फिर मैंने इसको पोस्ट करा। और उसके बाद भी गाइस इनके दो दोस्तों ने इनको टेक्स्ट करा, और टेक्स्ट करके इनको बोला कि भाई आपने जो पोस्ट करा है वो डिलीट कर दो, वो सही नहीं है। उसके बाद अली बिलाल ने सोचा कि क्या ये बात सही है, बट अली बिलाल वॉज स्टिल कन्फ्यूज्ड। उन्होंने डिसाइड करा कि इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, उसके बाद देखूंगा व्हाट टू डू अबाउट इट। बट गाइस कहते हैं ना कि कुछ टाइम में चीज़ें बदलती हैं, तो वही हुआ। 5 मिनट के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलने स्टार्ट हो गए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलने स्टार्ट हो गए जो इनके हक में थे, और जो इस बात को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और सिर्फ इनके डिवीजन से ही नहीं,
बिकनी डिवीजन, गर्ल वाले डिवीजन, वुमेन डिवीजन, जितने भी डिवीजन हैं उन सब से। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो बड़े टॉप के डिवीजन से, ओपन डिवीजन होगा, क्लासिक डिवीजन होगा, इनको अलग ही रिस्पेक्टेबल फील कराया जाता है और इनको ऐसा अनइनवाइटेड सा फील कराया जाता है। मेंस फिजिक हो गया, दूसरे जितने भी डिवीजन हैं उनको। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि आर्नोल्ड ने एथलीट्स के बारे में कुछ नहीं बोला, डिवीजन के बारे में थोड़ा सा बोला, आईबीबी के बारे में थोड़ा सा बोला, लेकिन गाइज वही है ना कि आप कुछ भी ऐसा अनइनवाइटेड तो फील नहीं कराओगे ना। अब यहाँ पर अली बिलाल ने ये तक बताया कि पोस्ट शो इंटरव्यू जो हो रहे थे, पॉडकास्ट में ये बैठे हुए थे, वहाँ पर इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया और बाकी सब की तरफ ये मूव कर गए। अब दूसरी चीज़ ये भी है गाइस, काफ़ी कंपैरिजन भी इन्होंने बताया कि कैसे मेंस फिजिक डिवीजन राइस पर है, एशियन कंट्रीज़ में तो सबसे बड़ा टॉप डिवीजन है ये। और दूसरी बात, अगर आपको बोर्ड शॉट्स में नहीं देखना था एथलीट्स को, उनको अगर आपको ऐसे नहीं देखना था तो भाई आप 212 डिवीजन को क्यों नहीं बुलाते। एंड इट वॉज द राइट रीज़न गाइज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 212 डिवीजन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इतना ज़्यादा कैश ब्रिंग इन नहीं करता जितना कि मेंस फिजिक डिवीजन करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थी और इसीलिए यहाँ पर अली बिलाल ने बोला कि देखो लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली गाइज, बहुत ज़्यादा, हर एक डिवीजन से एथलीट्स निकल के आए इनको सपोर्ट करने के लिए। We don't get anything to come to the show. Yeah. We spent 16 weeks prepping for a show. 16 weeks. We can't go out with our partners to eat. We leave our kids at home, you know? Like we can't go celebrate their birthdays. There's so many sacrifices that we make. You know, all these bikini girls, wellness girls, all these women's, us, you know, we all go through the same thing. It's 16 weeks of our life. We go somewhere, we bring value to them. We don't get any value until we win. Yeah. There's only one person in that show that wins, and they have 50 guys competing in that show, 50 guys paying tanning, 50 guys paying everything. Like they're going there, they're paying their flights, they're paying their hotel, and all they want is a little bit time on stage to show their best physique, to be appreciated, right? I couldn't agree more. And from And my if you can't even give that back in return, that's like. and उसके बाद यहाँ पर देखो अली बिलाल बता रहे हैं कितने सैक्रिफाइसेस उनको करने पड़ते हैं, सिर्फ उनको ही नहीं, मेंस फिजिक डिवीजन के हर एक एथलीट को, मतलब दूसरे डिवीजन्स भी करते हैं, बट जिस तरह का रिवॉर्ड मेंस फिजिक डिवीजन को मिल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर ये बात कर रहे थे। तो ये 15-16 वीक्स की जो प्रेप करी है, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर ये अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं जा सकते, कुछ खा नहीं सकते अपनी पसंद का, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते तरीके से, मतलब हर एक चीज़ इनकी रोक दी जाती है। बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपन डिवीज़न के लोग सफ़र करें या क्लासिक डिवीज़न के लोग सफ़र करें। और यहाँ पे ये 16 के 16 लोग सफ़र कर रहे होते हैं गाइस, जितने भी यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं उस पूरे 15-16 वीक्स। और साथ में गाइस रिवॉर्ड सबको नहीं मिलता, वैल्यू इनमें से सिर्फ उसी को मिलती है जो जीतता है, बाकी सबकी सफरिंग का क्या होता है, और उसके बाद भी प्राइस मनी इतना कम। I got, by the way, just to make something clear, I got 14,700 from the Arnold. They took tax off. Yeah, they took tax off, conversion rate, all these things. So I'm left with 14,700 something, okay? Just want to make that clear from the 25,000. Now let me just tell you something. Wait. Yeah, it's crazy, right? Oh. So we are talking here about, I did other shows in Europe here where I got $2,000 for a first prize. We are living in Europe. Why do we have dollars? Why do you Yeah. pay dollars? Okay, from $2,000, they took 400 euros to convert the money to euros. I'm left with 1,600, right? From 1,600, they took 300 tax. I'm left with like, how much is that? 1,300, right? From 1,300, they took 200 to send it through PayPal. I'm left with 1,100. Is that correct to you? No. oh, Is that's a 16-week prep worth $1,100? absolutely not. You could argue it's not worth $2,000. No, absolutely not. Why do you pay dollars in Europe? If you go to compete in China, do they pay you in yen or do they pay you in dollars? They pay you in Chinese yen. If you compete in Dubai, do they pay you in dollars, right? Mhm. They give you the money. I went to Pittsburgh. I won the show. They give me a check right away. I went to the bank. I cash it. I got the exact amount. Here in Europe, they have to go. They give you $1. Is a board, say $2,000.
Like we're doing a show in European country. Why do we need dollars? We're not in America, right? Yeah. अब देखो प्राइज मनी वाले पॉइंट पे अगर मैं आऊँ तो प्राइज मनी के लिए यहाँ पे बोला गया था कि 10,000 नहीं $25,000 इनको मिले। ठीक है, वो बात में इन्होंने करेक्ट कर लिया था, लेकिन गाइज एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ये भी हुआ है कि इसमें से $14,700 आर द प्राइज मनी जो इनको अब मिलेगा, जितने भी टैक्सेस से सबको काट के। 25,000 में से आप इमेजिन करो $14,700 आपको मिल रहे हैं, है ना? बहुत ही अजीब बात, बहुत ही ज़्यादा अजीब बात। मतलब $10,300 आपने उसमें से कट कर दिया, और ये भी टू द विनर गाइस, टू द विनर। मतलब सेकंड प्लेसर, थर्ड प्लेसर के लिए तो कुछ भी नहीं है, और उसके बाद जितने भी प्लेसर हैं उनको तो कुछ मिलता ही नहीं है। उनको तो सब प्राइसेस पे करने होते हैं, शो के प्राइसेस, ट्रैवलिंग के प्राइसेस, प्रेप के प्राइसेस, साथ में गाइस टाइमिंग वगैरह हर एक चीज़ के चार्जेस उनको पे करने होते हैं, और बाद में मिलेगा क्या? $14,700 ओनली टू द विनर आफ्टर ऑल द सफरिंग। जो कि गाइज अगर आप कंपेयर करोगे ओपन डिवीजन से जहाँ पे $500,000 मिले, दैट इज़ वेरी 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 लेस। मतलब बहुत ही नॉमिनल सी, बहुत ही मिनिमल सी अमाउंट इनको दी जा रही है। इस बारे में अली बिलाल ने बात करी, और साथ में ये तक बताया कि इतने सारे टैक्सेस जो आप काट रहे हो, प्लस कन्वर्जन फ़ी के चार्जेस भी आप काटते हो और उस पर भी टैक्स काटते हो। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि कई सारे शोज़ में आपकी करेंसी जो है कन्वर्ट करते हैं ये दूसरी करेंसी में, उसके बाद उसमें से भी चार्जेस काटते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा $2,000 वॉज द प्राइज मनी, फिर इसको कट कर करके $1,100 इनके हाथ में आया, जो कि $1,100 मतलब समझ लो आप कितनी ज़्यादा स्मॉल अमाउंट हो गई है कंपेयर टू जितनी ज़्यादा सफरिंग इन लोगों को करनी पड़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट तो है गाइस, क्योंकि इतने सारे टैक्सेस जब अमाउंट में से आपके कट जाएं, और इतनी मतलब देख रहे हो आप 50% अमाउंट आपकी ऑलमोस्ट कट रही है दोनों ही सूरत हाल में, जो कि इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं थी। और इस बारे में इन्होंने एक चीज़ और करी कि भाई आपको स्टैंडर्ड एक प्राइस मनी रखना चाहिए हर एक शो का, प्लस जिस तरह से आप दूसरे हर एक डिवीज़न को रेस्पेक्ट देते हो उस तरह से गाइस हमारे डिवीज़न को भी रेस्पेक्ट दो। नहीं तो मत बुलाओ, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर आप बुला रहे हो, जैसे आपने मुझे इन्वाइट करके बुलाया था, मैं कम्पीट नहीं करता यहाँ पे, बट इन्वाइट करके मुझे बुलाया, तो मुझे वैसा फील भी होना चाहिए, बिकॉज अपनी तरफ से मैंने 100% दिया है। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट्स, मतलब अभी तक देखो अली बिलाल का जो वीडियो निकल के आया था ना, जो उन्होंने खुद शूट करा था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लोगों के रेज हो गए थे। किसी को समझ में आया था, किसी को नहीं आया था, काफ़ी ज़्यादा लोग तो सपोर्ट कर ही रहे थे। बट यहाँ पर इस पॉडकास्ट को आप देखोगे ना, तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा और क्लियर होंगी, और आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा इन लोगों का कि मेंस लीग डिवीजन के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और गाइस मुझे तो ऑनेस्टली यहाँ पर इनकी सारी बातें सही लगी। मतलब 14,700 इज़ द प्राइस मनी, 25,000 में से जो कट करके मिल रहा है, तो दैट इज़ वेरी वेरी लेस। 1100 की बात करें, क्योंकि ये तो एक अच्छे प्राइस मनी वाला शो था फिर भी कंपेयर टू अदर वंस, नहीं तो $2,000 मिलते हैं मेंस लीग डिवीजन के एथलीट्स को, और उसमें से भी टैक्स काट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे काट दिए जाते हैं। अब आपने देखा था ना माइकल डबूल वाला सीन मैंने कवर किया था लास्ट ईयर, उनको भी 2,000 में से $1,400 मिले थे, और उन्होंने इस बारे में काफ़ी बात कही थी कि भाई $2,000 इज़ द प्राइस मनी, और उसमें से भी आप कट कर रहे हो तो हमें क्या बचेगा, हमें क्या मिलेगा। इतना ट्रैवलिंग में ही लग जाता है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी ये जाते हैं कम्पीट करने के लिए। तो एनीवेज गाइज, अपनी ओपिनियन इस बारे में मुझे ज़रूर बताना। आपके सामने ये सारी चीज़ें मैं रखना ज़रूर चाहता था, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था और बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल के सामने आई। अब अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइज, तो वो है रामोन डिनो की। और रामोन डिनो ने अभी एक पॉडकास्ट के अंदर बोला है कि मैंने माइक को कई बार बीट कर रखा है। मतलब उनसे क्वेश्चन इस तरह का हुआ कि अब देखो माइक जिस तरह से चढ़ रहे हैं, जिस तरह से ऊपर जा रहे हैं, जिस तरह से बिल्कुल टॉप पे प्लेस कर रहे हैं, वो सबसे बड़े कंटेंडर कहला रहे हैं क्लासिक डिवीजन के। तो क्या आपको लगता है कि अब आप उस तरह से अपने आप को साबित कर सकते हो या फिर माइक को बीट कर सकते हो? तो रामोन डिनो ने इस बारे में बोला कि यस, मुझे लगता है, क्योंकि माइक को मैं पहले भी कई बार बीट कर चुका हूँ। बट अब आप इस बारे में मुझे बताओ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, कि क्या आपको लगता है कि अब भी ऐसा पॉसिबल है? बिकॉज गाइज ऑनेस्टली जिस माइक सोमरफील्ड को रामोन ने बीट करा था ना, वो माइक एक अलग ही माइक थे, इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ नहीं थे। लास्ट 1.5 सालों में माइक ने ज़मीन आसमान का फ़र्क कर दिया अपनी फिजीक में, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स करके लाए, हर एक मसल को कंप्लीट करके लाए। प्लस आई डोंट नो इन्होंने कोच चेंज करे हैं या नहीं करे इन लास्ट 2 शोज़ के लिए, बिकॉज इनके लास्ट 2-3 परफॉर्मेंसेस में इनकी कंडीशन जो हमेशा एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहती थी ना, वो भी सॉल्व हो गई। इनकी कंडीशन बिल्कुल परफेक्शन के साथ दिखती है, पीक हिट करके आ रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। जो एक फाइनल पीस इन द पजल था ना, वो भी इन्होंने मैच कर लिया, वो भी इन्होंने जोड़ लिया। तो अब वो बात इनके साथ भी है, साथ में रामोन के साथ भी है कि रामोन 2 साल पहले तक जो रामोन थे वो रामोन नहीं है। अब आप में से देखो कुछ लोग बोलोगे कि मिस्टर ओलंपिया भाई एक ही बार तो हुआ है, ऐसी परफॉर्मेंस इनकी गिरी है। नहीं गाइस, शायद आपने मिस्टर ओलंपिया ब्राज़ील जो मिस्टर ओलंपिया के बाद हुआ था, जहां पर रामोन जीत गए थे और क्वालिफाई कर लिया था इन्होंने अब मिस्टर ओलंपिया के लिए इस साल के, उसके अंदर भी रामोन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी गाइस। इनफैक्ट 11th प्लेसर 12th प्लेसर से ये बीट हो रहे थे वहाँ पर,
और एक जो एथलीट थे वहाँ पर वो तो क्वालिफाइड भी नहीं थे लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया के लिए। इवन ही वॉज वेरी वेरी टफ टू बीट और यहाँ पर मुकाबला बहुत ही बराबर था टॉप 3 के अंदर। ठीक है, रमॉन स्लाइटली बेटर होंगे या फिर, लेकिन अगर कोई दूसरा भी इन दोनों में से जीत जाता ना, सच में आप लोगों में से कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं करता, बिकॉज दे ऑल वर रियली रियली गुड। और रमॉन जितनी स्मॉलर इफ नॉट स्मॉलर देन हिम, वेस्ट यहाँ पर ये कैरी करते हुए दिख रहे हैं वन पंच नाज, और बहुत ही जल्दी गाइस। मतलब इनका फर्स्ट ओलंपिया था मिस्टर ओलंपिया वन पंच नाज का, और उसके बाद मिस्टर ओलंपिया ब्राजील में इन्होंने कम्पीट करा, यहाँ पर ये सेकंड या थर्ड प्लेस हुए थे, बट जीत कोई भी सकता था। रमॉन की परफॉर्मेंस इतनी सिग्निफिकेंट नहीं आ रही है गाइस, स्पेशली रीज़न यही है कि भाई वेट कैप उनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको रोक रहा है, और ऐसी चीज़ होनी ही है बिकॉज वेट कैप आपका पहले ही 1.5 साल पहले लिमिटेड हो गया था। तो आपको लैट्स चाहिए गाइस, आपको लैट्स में इंप्रूवमेंट्स करनी है, आपको लैट्स में विच चाहिए, वो मसल मास पता लगनी चाहिए, बट आप कैसे करोगे? अब माइक के साथ तो अलग ही सीन है, पता नहीं मैजिकल वे में वो वेट कैप हिट कर देते हैं, वेट कैप के अंदर आ जाते हैं और इतने ज़्यादा डेंस मसल लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरों के साथ वो सीन नहीं है। बहुत ज़्यादा एथलीट्स कहीं ना कहीं दिक्कतें फेस कर रहे हैं, स्पेशली क्लासिक डिवीजन के। तो अब रमॉन के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइस। मुझे सच में, मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल ही आप लोग हेट करने लग जाते हो, लेकिन रमॉन का कमबैक टॉप 3 में होता हुआ मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, वो चीज़ मुझे नहीं लग रही। और रमॉन के फैंस भी अब इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा समझ गए हैं। देखो, अगर मुझे गलत साबित कर दें या फिर मेरी ओपिनियन को गलत साबित कर दें इस पॉइंट पर जो मैं रखता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, आई विल बी रियली रियली हैप्पी गलत प्रूव होते हुए भी। लेकिन जैसे सिनेरियोस चल रहे हैं, जैसे सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं ना, उसके बाद तो ऐसा होता हुआ बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। एनीवेज, यहाँ पर माइक के भी कमेंट सामने आए हैं और माइक यहाँ पर बोलते हैं कि मेरा पर्सनल गोल इस बार के मिस्टर ओलंपिया के लिए कि अपना सबसे बैलेंस्ड, अपना सबसे कंप्लीट, सबसे ज़्यादा एस्थेटिक, सबसे ज़्यादा क्लासिक लुक लेके आऊँ, बहुत ही ज़्यादा राउंड फिजिक के साथ स्टेज पे। तो अब मैं ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल ही नया हो, एक नया स्टैंडर्ड हो, बिकॉज यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट गाइस, यहाँ पर कोई सीबम 2.0 नहीं बनेगा, कोई सीबम 2.0 नहीं आएगा। नोबडी कैन कॉपी हिम, उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता। ही इज़ वेरी वेरी यूनिक, बट मैं अपने डिवीजन का फर्स्ट माइक सोमरफील्ड बन सकता हूँ और अब इस डिवीजन को लीड कर सकता हूँ। तो काफ़ी स्ट्रांग वर्ड्स हैं गाइस, काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम लेके चल रहे हैं। देखो, मिस्टर ओलंपिया में भी इनको काफ़ी पसंद करा गया, आर्नो क्लासिक में भी पसंद करा गया, और सच में गाइस ही डिजर्व्स ऑल द अप्रिसिएशन, ऑल द रिस्पेक्ट, बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है। अब यहाँ पर देख लो, इन्होंने न्यू फिजिक अपडेट पोस्ट करी है और यहाँ पर हाउ क्लासिक ही इज़ लुकिंग, साथ में इनका टेपर देख रहे हो आप, जो एक्सट्रीम होता है ना। अभी रिसेंट के टाइम में मैंने आई थिंक किसी का भी एक्सट्रीम इतना सिग्निफिकेंट, इतना स्ट्रांग नहीं देखा जितना कि मैं माइक का यहाँ पे देख रहा हूँ। आई डोंट नो इफ ही इज़ अबाउट टू कम्पीट इन एनी अदर शो। आई थिंक पिट्सबर्ग में ही इज़ कम्पीटिंग, मैंने जहाँ तक सुना था, मुझे लोग बता रहे थे कि पिट्सबर्ग में माइक इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम्पीट, लेकिन इनकी कंडीशन वगैरह देख लो, इनका शेप देख लो, मैन कहीं से भी कोई कमी नहीं है। ही इज़ एब्सोल्युटली बैलेंस्ड, मतलब जैसे सैमसन को कहते हैं ना हम ओपन डिवीजन में कि बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा प्रपोर्शनेट है, वैसे ही मैं माइक के बारे में बोलूँगा। और माइक के बारे में तो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रांगली बोला जा सकता है, बिकॉज ही इज़ इंसेनली कंडीशन। कहीं भी बैक से भी अगर आप देखोगे हैमस्ट्रिंग वगैरह से, तो आप वो कमी नहीं ढूंढ पाओगे। एनीवेज, आप बताओ क्या आपको लगता है, रमॉन माइक को बीट कर सकते हैं इस साल, या फिर अब माइक बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं और रमॉन के लिए वो स्कोप अब इस ओपन डिवीजन के अलावा यानी क्लासिक डिवीजन में नहीं बचता, जब तक वेट कैप में चेंजेस नहीं होते, नहीं तो रमॉन के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। एनीवेज, इसके बाद अगर बात करूँगा इस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है फिल हीथ की। तो अभी काई ग्रीन का जैसा इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद में कई लोग अटकलें लगा रहे थे कि भाई फिल हीथ इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम्पीट, फिल हीथ भी उतरेंगे यहाँ पर कम्पीट करने के लिए मास्टर्स ओलंपिया में। तो फिल हीथ ने वंस एंड फॉर ऑल इसके लिए सही सा आंसर कर दिया और लोगों के मुँह बंद कर दिया कि भाई अब इस बारे में क्वेश्चन मत करो, इस बारे में र्यूमर्स मत फैलाओ, इस बारे में गॉसिप मत करो। इन्होंने बोला गाइस फिल हीथ ने कि आई एम नॉट कमिंग बैक, मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। देयर इज़ नो मास्टर्स ओलंपिया फॉर मी, मेरे लिए कोई मास्टर्स ओलंपिया नहीं है। यानी कि अब ये कम्पीट नहीं करेंगे, ना इस साल के मास्टर ओलंपिया में, ना आने वाले किसी मास्टर ओलंपिया में, ना उसके बाद वाले किसी मास्टर्स ओलंपिया में। लेकिन अब देखो, लोग इतना मेंटल हो चुके हैं कि लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मास्टर्स ओलंपिया के बारे में बात करी है, यानी कि ओपन ओलंपिया में अभी भी कम्पीट कर सकते हैं इफ़ ही वांट्स टू, अगर ये डिसाइड करें, बिकॉज वहाँ पर इन्होंने रिफ्यूज़ नहीं करा। तो भाई रिफ्यूज़ तो इन्होंने कई सारी चीज़ों को नहीं करा, तो क्या हर चीज़ वो जो रिफ्यूज़ नहीं करी गई आप सब और ये भी वो कर लेंगे? तो ये बहुत अजीब सी बात है। लोग होप करते हैं, देखो फैंस हैं, सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन अब हमें ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। फिल हीथ अब मुझे नहीं लगता कभी भी हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे। इट्स अ वेरी ग्रेट जर्नी, बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली इन्होंने कंप्लीट करी अपनी ग्रेट जर्नी, और अब बहुत अच्छे से अपनी फिजिक को भी रिटेन करते हुए चल रहे हैं, मसल मास को होल्ड करते हुए चल रहे हैं। बट अब हमें आई थिंक ये नहीं मानना चाहिए कि फिल हीथ दोबारा से स्टेज पर हमें दिखाई देंगे उस तरह से कम्पीट करते हुए। एंड आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी और किसकी अपडेट्स कवर करते हुए देखना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, जल्दी से चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, जल्दी, आपकी ड्यूटी अभी है।
और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।